Hello students, today we will start with a new topic, new chapter, the fun they had. So before reading the story, I would like to tell you something that this story that which we are going to read, we shall read it afterwards, but before we should understand some things related to it, that the story is related to the future when books in schools as we know now them will perhaps not exist. इस समय जब हम पढ़ रहे हैं तो अभी हम लोग बुक्स को भी जानते हैं, हम स्कूल्स भी जाते हैं, लेकिन ये जो स्टोरी लिखी गई है ये फ्यूचर के बारे में सोच कर लिखी गई है कि आने वाले समय में ना शायद बुक्स होंगी और ना ही स्कूल्स एग्जिस्ट करेंगे, तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे। तो अब हम इस डायग्राम में देखते हैं कि किस तरीके से ये आइडियाज़ जो आपको दिए गए हैं लिंक करते हैं। तो फ्यूचर के स्कूल्स जो होंगे वो किस तरीके से होंगे। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स होगी, बच्चे कंप्यूटर्स से पढ़ेंगे, वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे, बच्चे सेपरेटली अपने अपने कंप्यूटर अपने लैपटॉप से पढ़ेंगे। टीचर्स आज की तरह नहीं होंगे, रोबोटिक टीचर्स होंगे जो उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। और ई टेक्स्ट होगा, मीन्स आज के समय में आपके पास बुक्स होती हैं, आप उनमें से रीड करते हैं, लेकिन आने वाले समय में आप नेट से ही बुक्स अवेलेबल होंगी और उन्हीं बुक्स को आप पढ़ेंगे। सो नाउ लेट अस बिगिन विद द चैप्टर। दिस चैप्टर द मेन कैरेक्टर इज मार्गी. Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." So this Margie, she is 10 or 11-year-old girl. She is in the habit of writing a diary. On that night, with the date 17 May 2157, she wrote that today her brother Tommy, he found a real book, means an original book she has seen for the first time in her life, because at that time when Margie was there, so Margie will be there in 17 May 2157. At that time only e-books, means the books that you can read from the net, will be there. It was a very old book. So the one which Tommy found, that book was very old. Margie's grandfather once said that when he was little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. So Margie remember one thing that her grandfather told, that his grandfather has told him that there were times, ऐसे टाइम्स थे उनके टाइम में जब स्टोरीज जो थी वो पेपर के ऊपर प्रिंटेड होती थी. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. So now here what it is said, that they turned the pages. The book they had found it, they were turning and seeing the pages. They had turned yellow because it was a very old book and the pages have crinkles. Folds and lines were there on the pages, and it was really funny for them to read the words that were standing still. Means if we are reading anything on the net, or we are using any internet for reading the books, so we can scroll the pages, but here the pages were not scrolled, it was still printed and were not moving from anywhere. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it. तो अब यहाँ पर क्या होता है, अगर वो वापस से पीछे वाला पन्ना टर्न करते हैं उस बुक का, तो सेम वर्ड्स उन्हें फिर से दिखाई देते हैं, जैसा उन्होंने पहले पढ़ा था वैसा ही वहाँ पर मिलता है. गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट. तो गी कहते हैं कि टॉमी क्या वेस्टेज है ये तो. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक्स यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस. तो अब यहाँ पर वो क्या कहती है टॉमी से कि ये तो एक तरीके का वेस्टेज है, क्योंकि जब हम एक बार बुक को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद फिर हमारे किसी काम की नहीं, फिर हम उसे जहाँ तक मुझे लगता है थ्रो कर देते हैं.
Our television screen must have had 1 million books on it and it's got for plenty more. I would not throw it away. अब यहाँ पर जो गर्ल है वो क्या बोलती है अपने ब्रदर से कि ये बुक्स तो यूज़लेस हैं जो प्रिंटेड मटेरियल है, लेकिन मेरे टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं, मिलियंस बुक्स हैं, मैं जब जी चाहे तब उन्हें पढ़ सकती हूँ और बहुत सारी और बुक्स भी हैं और मुझे उस टेलीविज़न स्क्रीन को थ्रो करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती. सेम विद माइन सेड मार्गी. अब मार्गी क्या कहती है कि हाँ हाँ मेरे टीवी स्क्रीन के साथ भी ऐसा ही है. शी वॉज 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. तो अब जो मार्गी है वो 11 ईयर ओल्ड है, उसने अभी तक इतनी बुक्स नहीं देखी हैं जितनी कि टॉमी ने देख ली हैं, क्योंकि टॉमी 13 ईयर ओल्ड है, उससे बड़ा है. शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट. अब वो अपने ब्रदर से पूछती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली. इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक. So what he said, that in my house I had got this book and he was busy reading the book. What's it about? तो अब वो क्या पूछती है कि ये बुक किस चीज़ के बारे में है. The reply was school, that the book was related to school. Margie was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. तो मार्गी जो है वो स्कूल को पसंद नहीं करती. मार्गी एकदम से बोलती है स्कूल, ऐसा क्या है जो स्कूल के बारे में लिखा है इसमें. आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल. मार्गी को बहुत बुरा लगता था स्कूल, बहुत हेट करती थी वो स्कूल को. बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. लेकिन अब वो उससे भी ज़्यादा उसे हेट करती है स्कूल को. मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी. And she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. तो अब मैकेनिकल टीचर जो है वो टेस्ट के बाद टेस्ट लेता है मार्गी का ज्योग्राफी से रिलेटेड, और हर बार बुरे से बुरे मार्क्स उसके आते हैं और उसकी मदर जो है मार्गी की वो बहुत दुखी फील करती है और अपना हेड भी शेक करती है और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है. काउंटी इंस्पेक्टर वो जो इस मशीन को मैकेनिकल टीचर को सही करेगा. मैकेनिक. ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स. तो अब काउंटी मैन जो है, जो काउंटी इंस्पेक्टर है, वो कैसा दिखता है. एक राउंड लिटिल मैन है, रेड उसका फेस है, उसके पास बॉक्स है जिसमें टूल्स, डायल्स, वायर्स वगैरह रखे हैं. ही स्माइल्ड एट मार्गी, गेव हर एन एप्पल. अब उस मार्गी की तरफ देख के स्माइल करता है, उसे एक एप्पल देता है. देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वो उस टीचर को, मैकेनिकल टीचर को एक साइड ले जाता है. मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन. नार्गी सोचती है कि शायद इसे खोलने के बाद फिर दोबारा से जोड़ना नहीं आता है उसे. बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली. तो अब क्या होता है, 1 घंटे के बाद वापस से सब कुछ जुड़ जाता है उस मैकेनिकल टीचर का, और फिर दोबारा से वो टीचर रेडी हो जाता है. लार्ज, ब्लैक एंड अगली. दिस इज़ द face expressions of that particular teacher, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. एक बड़ी सी स्क्रीन है जिसके ऊपर सारे lessons शो होते हैं, questions पूछे जाते हैं. और that was not so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. बाकी कोई चीज़ से मार्गी को कोई परेशानी नहीं थी. सबसे ज़्यादा जो परेशानी थी वो स्लॉट से थी. वो स्लॉट उसे बिल्कुल पसंद नहीं था जहाँ पर उसे होमवर्क करने के बाद अपना होमवर्क डालना होता था और टेस्ट देने के बाद टेस्ट पेपर डालना होता था. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time.
तो उसे एक पंच कोड की लैंग्वेज यूज़ करनी होती थी लिखने के लिए, जो उसे 6 ईयर्स में ही सिखा दी गई थी। और मैकेनिकल टीचर फिर उसमें से मार्क्स कैलकुलेट करता था और विद इन नो टाइम रिप्लाई आ जाता था उसके टेस्ट का कि कितने मार्क्स आए मार्गी के। इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। इंस्पेक्टर का जब काम फिनिश हुआ, काउंटी इंस्पेक्टर का, तो वो मार्गी को देख के स्माइल करता है और उसके सिर पे पैट करता है। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। अब वो उसकी मदर से बोलता है, मिसिस जोन्स से, कि बच्ची की कोई फॉल्ट नहीं है इसमें। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है इसमें जो ज्योग्राफी सेक्टर है आपके मैकेनिकल टीचर में, वो कुछ ज़्यादा ही फास्ट चल रहा है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कई बार ऐसा हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। तो मैंने अब उसे स्लो कर दिया है 10 ईयर लेवल के अकॉर्डिंग। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory, and he patted Margie's head again. अब वो क्या कहता है, लेकिन इसका बाकी का ओवरऑल जो भी प्रोग्रेस है वो बहुत ही अच्छा है। और फिर से वो मार्गी के हेड पे पैट करता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। मार्गी बहुत ही दुखी फील करती है और क्या होप करती है कि काश वो उस टीचर को अपने साथ ही ले जाए। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। एक बार ऐसा हुआ था जब टॉमी का जो टीचर था उसे 1 महीने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर अपने साथ ले गए थे, क्योंकि तब उसमें प्रॉब्लम आई थी, उसका हिस्ट्री सेक्टर जो था वो पूरा ब्लैंक हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो इसलिए वो टॉमी से कहती है, क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। तो अब टॉमी जो है वो अलग तरीके की सुपीरियर आइज से उसे देखता है और कहता है कि स्टूपिड, ये हमारे स्कूलों के जैसा स्कूल नहीं है। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. ये बहुत ही पुराने टाइप का स्कूल है जो काफ़ी 100 साल पहले यहाँ पर हुआ करता था। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. मतलब उसके कहने का ये था कि सेंचुरीज पहले, बहुत सेंचुरीज पहले इस तरीके के स्कूल हुआ करते थे। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को दुख होता है। वेल, आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। मुझे नहीं पता उस समय पे कैसे स्कूल होते होंगे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर। तो अब उसके कंधे के ऊपर से वो बुक को पढ़ती है और क्या बोलती है, एनीवे उस समय पे भी टीचर होता था। Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher, it was a man. तो अब वो क्या कहता है मार्गी को कि हाँ, उस समय पे भी टीचर होते थे, लेकिन ऐसे रेगुलर टीचर्स नहीं होते थे जैसे हमारे हैं। उस समय पे मैन टीचर होता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। तो अब मार्गी फिर से क्वेश्चन करती है, क्या अ मैन, मैन एक टीचर कैसे हो सकता है। वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework, asked them questions. A man isn't smart enough. तो अब वो क्या कहता है कि हाँ, वो लड़के और लड़कियों को पढ़ाता था, उन्हें हर चीज़ के बारे में समझाता था, होमवर्क देता था और बाद में उन्हें क्वेश्चंस भी पूछता था। A man is not smart enough. तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो मैन है वो इतना स्मार्ट है क्या। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो अब वो क्या कहती है कि हाँ, मेरे फादर जो हैं वो उतना ही जानते हैं जितना मेरा टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा।
तो अब वो क्या कहती है, जितना मैं जानता हूँ उतना ही मेरे फादर भी जानते हैं। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। अब मार्गी उसके साथ लड़ाई करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। शी सेड आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब वो क्या कहती है कि मुझे वो स्ट्रेंज पर्सन अपने घर में नहीं चाहिए मुझे पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी जोर जोर से हंसने लगता है। यू डोंट नो मच मार्गी। तुम्हें ज़्यादा नहीं पता है मार्गी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन हाउसेस। टीचर्स घरों में नहीं रहते। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती है, सब बच्चे वहाँ जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। सभी बच्चे एक ही चीज़ सीख कर आते हैं वहाँ से। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। अगर सबके सब सेम एज के हों। बट माई मदर सेज द टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड of each boy and girl. It teaches that each kid has to be taught differently. तो अब यहाँ पर मार्गी क्या बोलती है कि मेरी मदर तो कहती हैं कि हर बच्चे के अकॉर्डिंग, हर बॉय गर्ल के माइंड के अकॉर्डिंग टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है, और पढ़ाते हैं वो हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। उस समय पे लेकिन ऐसा नहीं होता था। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम बुक को मत पढ़ो। आई डिडंट से आई डिड नॉट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मार्गी एकदम से बोलती है, मैंने तो नहीं कहा कि मुझे नहीं पसंद। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वो उन स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड। मार्गी स्कूल, अभी हाफ भी उनकी बात फिनिश नहीं हुई थी, तभी मार्गी की मदर उसे कॉल करती हैं कि मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। तो वो मार्गी ऊपर देखती है और कहती है, नहीं मम्मा अभी नहीं। नाउ सेड मिसिस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। तुम्हारा भी टाइम हो गया है, और जहाँ तक लगता है कि टॉमी का टाइम भी हो गया है स्कूल का। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तो अब मार्गी टॉमी से क्या कहती है कि स्कूल के बाद क्या मैं थोड़ी देर के लिए और तुम्हारे साथ इस बुक को पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली। ही वॉकड अवे विस्लिंग, द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड beneath his arm। तो अब क्या होता है, ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाते हुए वो वहाँ से विसल्स बजाते हुए और उस पुरानी डस्टी बुक को अपनी आम के नीचे दबाकर चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी स्कूल रूम में चली जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और स्कूल रूम उसके बेडरूम के जस्ट बगल में था, जहाँ की मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। हर दिन वो मैकेनिकल टीचर वहाँ उसे पढ़ाता था, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि मार्गी की मदर का मानना था, और वो हमेशा कहती थी कि छोटी लड़कियां जो हैं वो अगर सेम टाइम पे सेम चीज़ को सीखें तो अच्छा सीखती हैं, अच्छा लर्न करती हैं। The screen was lit up and it said, Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions। तो वो क्या बोलता है कि today your lesson will be on mathematics। स्क्रीन जो है उसके ऊपर लाइट जलती है, और वो आगे से जो टीचर है वो मैकेनिकल टीचर बोलता है कि आज तुम्हारा मैथमेटिक्स का जो लेसन है वो एडिशन से रिलेटेड है प्रॉपर फ्रैक्शंस के। प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और अपना कल वाला होमवर्क आप प्रॉपर स्लॉट में डाल दीजिए। मार्गी डिड सो विद अ साई। मार्गी एक गहरी सांस लेके ऐसा करती है, अपना होमवर्क स्लॉट में डालती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। तो मार्गी अभी उसी स्कूल के बारे में सोच रही है जो स्कूल सेंचुरीज पहले, जब उसके ग्रैंडफादर एक छोटे बच्चे थे, उस समय पे हुआ करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड्स। सभी बच्चे
पूरे नेबरहुड से वहाँ पर आते थे, हंसते खेलते हुए स्कूल यार्ड में आते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, सभी एक साथ क्लासरूम में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, जब स्कूल एंड होता था तो सभी एक साथ जाते थे। दे लर्नड द सेम थिंग्स, सभी एक ही चीज़ सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन एंड अदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, तभी एक दूसरे की मदद होमवर्क में भी करते थे और एक दूसरे से होमवर्क से रिलेटेड बात भी करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और उस समय के टीचर्स जो थे वो ह्यूमंस थे। मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, अब मैकेनिकल टीचर जो है उसकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, तो उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा था। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, मार्गी अभी भी यही सोच रही थी कि पुराने समय में जो बच्चे थे वो अपने स्कूल्स को कितना पसंद करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, तो वो उस फन के बारे में सोच रही थी जो उस समय के सेंचुरीज पहले के स्कूल्स में बच्चे जब जाते थे तो वो इंजॉय करते थे। तो लास्ट में जो नरेटर है उसने लास्ट लाइन में आपके चैप्टर की हेडिंग के साथ ही एंडिंग दी है, द फन दे हैड। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स।